माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शक्ति श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गो प्रेमानंद। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hare Krishna. So we are going to continue reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 5, The Cause of All Causes, text number 33.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tada samhatya chanyonyam Bhagavat Shakti Choditaha Sad Asatvam Upadaya Achobhyam Shashriju Hi Adaha Tada Samhatya Chanyonyam Bhagavat Shakti Choditaha Sad Asatvam Upadaya Chobhyam Sasrijur Hiyada Tada Samhatya Chanyonyam Bhagavat Shakti Choditaha Sad Asatvam Upadaya Chobhyam Sasrijurhi Yada Tada Samhatya Chanyonyam Bhagavat Shakti Choditaha Sada Sattvam Upadaya Chobhyam Sasrijurhi Yada Sada Samhatya Chanyonyam Bhagavat Shakti Choditaha Sada Sattvam Upadaya Chobhyam Sasrijurhi Yada Tada Samhatya Chanyonyam Bhagavat Shakti Choditaha Sada Sattvam Upadaya Chobhyam Sasrijurhi Yada Tada Samhatya Chanyonyam Bhagavat Shakti Choditaha Sada Sattvam Upadaya Chobhyam Sasrijurhi Yada Bhagavat Shakti Choditaha Sada Sattvam Upadaya Chobhyam Sasrijurhi Yada Sada Samhatya Chanyonyam Bhagavat Shakti Choditaha Sada Sattvam Upadaya Chobhyam Sasrijurhi Yada. Very nice. Tada, all those Samhatya being assembled, Cha also Anyonyam one another, Bhagavat by the personality of Godhead, Shakti energy, Chodita being applied, Sat Asatvam primarily and secondarily, Upadaya accepting, Cha also, Ubhayam both, Sasriju came into existence. He certainly, Adaha this universe. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Thus, when all these became assembled by force of the energy of the Supreme Personality of Godhead, this universe certainly came into being
by accepting both the primary and secondary causes of creation. तो ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला चीज क्या ख्याल आता है आपको? ये क्या जवाब देता है ये श्लोक बच्चा लोग? प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? क्या सुना आप लोग? प्रभुपाद की लेक्चर सुना आप लोग? लेक्चर सुनते हो प्रभुपाद जी का? ये ट्रांसलेशन आप पढ़ेंगे तो सेम टाइम आपको बोलता है प्रभुपाद जी, मेरे स्मरण में आता है प्रभुपाद जी बोलता है दुनिया सोचता है कि कोई बिग बैंग से दुनिया हो गया है। यहाँ पे एविडेंस है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जब सब कुछ असेंबल हुआ बाय फोर्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी, भगवान के शक्ति के द्वारा सब जब असेंबल हुआ, दिस यूनिवर्स सडनली केम इनटू बीइंग, तब ये संसार जो है ये सब बीइंग में आ गया, by accepting both primary and secondary causes. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, in this verse it is clearly mentioned that the supreme personality of Godhead exerts his different energies in the creation. It is not that he himself is transformed into material creations. तो प्रभुपाद जी सबसे पहला बात कि भगवान के शक्ति भगवान इसमें पुश करते हैं, और ऐसे नहीं कि भगवान ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मटेरियल क्रिएशन। ही एक्सपेंड्स हिमसेल्फ बाय हिज डिफरेंट एनर्जीज एज वेल एज बाय हिज प्लेनरी पोर्शंस। इन अ कोना ऑफ द स्पिरिचुअल स्काई ऑफ ब्रह्म ज्योति, अ स्पिरिचुअल क्लाउड समटाइम्स अपीयर्स, एंड द कवर्ड पोर्शन इज कॉल्ड महातत्व। द लॉर्ड देन बाय हिज प्लेनरी पोर्शन एज महाविष्णु lies down within the water of Mahat Tattva, and the water is called the causal ocean, Karana Jal. While Mahavishnu sleeps within the causal ocean, innumerable universes are generated along with his breathing. These universes are floating and they are scattered all over the causal ocean. They stay only during the breathing period of Mahavishnu. In each and every universal globe, the same Mahavishnu enters again as Garbhadaksai Vishnu and lies there on the serpent-like Shesh incarnation. From his navel sprouts a lotus stem, and on the lotus Brahma, the Lord of the universe, is born. Brahma creates all forms of living beings of different shapes in terms of different desires within the universe. He also creates the sun, moon and other demigods. तो फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी पूरा क्रिएशन प्रोसेस बहुत समरी में समझा दिया ना, कि स्पिरिचुअल स्काई जो होता है ब्रह्म ज्योति होता है। तो जैसे हम कभी कभी सूरज निकलता है तो सामने बादल आ जाता है ना, जब बादल आ जाए तो ई साइड क्या हो, कभी कभी हम लोग देखेगा ना, एक जगह पे घाम लगे एक जगह पे छाई है। तो वही रकम प्रभुपाद डिस्क्राइब करे बोले कि ब्रह्म ज्योति स्पिरिचुअल क्लाउड समटाइम अपीयर्स एंड द कवर्ड पोर्शन इज कॉल्ड महातत्व। जो परछाई वाला साइड है जो कवा हो जाए उस साइड महातत्व है। तो भगवान फिर क्या करे, प्लेनरी पोर्शन महाविष्णु के रूप में भगवान वहाँ कारण जल में लेटे हैं। और भगवान के सुंदर बात प्रभुपाद जी बोले यहाँ पे, वाइल महाविष्णु स्लीप्स विद इन द कौशल ओशन, भगवान सोए हुए होते हैं। जब मानो प्रोग्राम है, ठीक है, एक प्रोग्राम चल रहा है और आपको प्रोग्राम में आना है बट यू डिसाइड टू स्लीप, उसका मतलब क्या होता है? व्हेन विल यू गो टू स्लीप? व्हेन विल यू नॉट डू वन थिंग बट गो टू स्लीप? कोई आपको है? अच्छा, क्लास बोरिंग है तो आदमी सो जाए, मतलब कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू यू ना, इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। तो मटेरियल क्रिएशन भगवान के प्रायोरिटी नहीं है। मटेरियल क्रिएशन की बहुत जरूरी चीज है। मटेरियल क्रिएशन मटेरियल चीज कोई जरूरी चीज नहीं है। ये तो बिकॉज हम लोग भगवान से रिबेल करता है, भगवान के बात सुने नहीं मांगता है, भगवान के एक्चुअली में हम लोग भगवान के प्रोटेक्शन में रह नहीं मांगता है हम लोग भगवान के आश्रय में रह नहीं मांगता है। तो फिर भगवान सोते सोते ही काम करते, इंपॉर्टेंट नहीं है। भगवान रासलीला में सुती नहीं गोलोक वृंदावन में भगवान सुती नहीं, बिकॉज भगवान के यहाँ डिवोटीज है, भगवान के प्लेजर के लिए सबको काम करे हैं। तो इंटरेस्टिंग एनालॉजी प्रभुपाद इसकी, भगवान कौशल ओशन में
स्लीप करे। और भगवान जब स्लीप करे तो भगवान के ब्रीदिंग से क्रिएशन हो जाए। भगवान ब्रीदिंग तो तन को भगवान के इसमें एफर्ट नहीं लगाए गए, तो सुते सुते हो जाए काम। तो फिर प्रभुपाद जी एक्चुअली ये पैरा अभी जब ये मैं पढ़ रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ अगर प्रभुपाद जी इतना सिंपल में प्रभुपाद के 3-4 लाइन में पूरा क्रिएशन लिख दिया, हम लोग नहीं जान पाता, कभी नहीं जान पाता ना, इतना सिंपल में प्रभुपाद जी दे दिया। ये महाविष्णु, फिर महाविष्णु गर्भदक्षाई विष्णु जाके शेष के दुनिया भी सब ज़्यादा देखेगा, सब लोग दुनिया में ज़्यादा जाने खाली विष्णु के शेष पे लेटा हुआ उतने जाने। उससे आगे एक महाविष्णु है जिससे ब्रीदिंग से सब क्रिएशन है, मेजॉरिटी द पीपल डोंट नो। तो फिर बोले शेष गर्भदक्षाई विष्णु के नाभि से एक कमल लोटस स्टेम्प हुए हैं जिसपे ब्रह्मा जी के उत्पत्ति हुए हैं। फिर ब्रह्मा जी क्रिएट्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ लिविंग बीइंग्स ऑफ डिफरेंट shapes in terms of different desires within the universe। मैं ये पढ़कर मैं सोच रहा था कि this is another aspect that many people don't know ना। I think people talk about Brahma, Vishnu, Mahesh, they talk about Brahma ji being the creator, but इतना specific जैसे प्रभुपाद जी बताए ना यहाँ पे कि different shapes in terms of different desires, जो living entity के सब desires है last creation में जो है ना रिजॉल्व हो जाए है, ब्रह्मा जी फिर उस सब एक एक पैटर्न के बनावे ना, ब्रह्मा जी के सेकेंडरी क्रिएशन है। तो वैसे कोई जने खाली ब्रह्मा जी तलक ही जान पाए कि वही क्रिएशन है, बट मोर कॉमनली तो पीपल जाने भी नहीं कि रियली में ब्रह्मा जी सब जो री इंजीनियरिंग है, तब ब्रह्मा जी इंजीनियर है ना, आइटम्स है लेकिन इंजीनियर के औना के सब मटेरियल सप्लायर है लेकिन आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर के नाम हो जाता क्योंकि लोग जैसे औना सोचे वही लोग आकार दे ना। आर्किटेक्ट औना के जो थॉट्स है, औना कैसे मांगे हमारा बिल्डिंग रहे, कैसे घर रही, कहाँ कौन सी रही, आर्किटेक्ट उसके शेप दे दे, पुट्स इनटू रियलिटी। तो सुंदर प्रॉपर जितना ऐसे एकदम क्लियर विद मच क्लैरिटी प्रॉपर जी लिखी। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ बीइंग्स ऑफ डिफरेंट शेप्स in terms of different desires within the universe. He also creates the sun, moon and other demigods. हम लोग कॉमनली जानेगा कि सबको बोले इंद्र इज द किंग ऑफ द डेमीगॉड्स, या हम लोग बोलेगा देवों में देव महादेव, लॉर्ड शिवा इज द। तो लेकिन सबके क्रिएटर जो है वो ब्रह्मा जी। इवन मैं जब कृष्णा कॉन्शियस में नहीं आया था तो actually I didn't have any idea कि Brahma ji was the first, the second was the Kumaras, and when the Kumaras disobeyed then Lord Shiva. The Kumaras are elder brother of Lord Shiva. तो हम लोग सबको इन कॉमनली आदमी समझे कि जैसे महाराज बोलता रहा ना, एक्चुअली में भगवद गीता में यही तो क्लैरिटी प्रोवाइडेड है ना कि ये सब कोई सोचे कि जो अलग अलग गॉड्स है वो सब इंडिपेंडेंट गॉड्स है। आज सुबह सुबह हम 10 नाम अपराध बोलता रहा। तो सेकंड ला है कि टू कंसीडर द नेम्स ऑफ डेमी गॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा और ब्रह्मा टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम्स ऑफ विष्णु एंड कृष्ण। तो दुनिया भी सब जाने, सबको शिव पुराण पढ़ के सबको जाने लॉर्ड शिवा इज द इंडिपेंडेंट गॉड। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी कितना सरल से समझा दिया हम लोगों के कि ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग, ब्रह्मा जी से सब डेमी गॉड लोग भी आवे। So demigods have empowered him. And the very nice example, na? Maharaj उस दिन बहुत अच्छा example दिस रहा है, and I hope people got the example well. महाराज बोले साहब बोले कि material world is the prison. तो prison में जब कोई prisoner लोग हैं अच्छा रहे, obedient रहे, good prisoners रहे, तो उन लोग के थोड़ा position दे देवा जाए, but they are still within the prison. वेरी गुड पॉइंट, सॉलिड पॉइंट रहा महाराज के। तो मुझे याद आया ना, जैसे हम लोग के यहाँ पीजी में कोई ऑफेंडर्स लोग हैं, तो मैं याद किया एक बिजनेसमैन था, उसको जेल हो गया था। तो क्योंकि वो बिजनेसमैन है ना, तो फिर वो गया प्रिजन में, जाके वो प्रिजन का एक बिजनेस डेवलप कर दिया ना, कुछ भी फार्मिंग वार्मिंग करके कुछ स्टोर खोल दिया ऐसे। तो इट वेंट, आई थिंक रियली आफ्टर दैट ही प्रिजन्स में करेक्शन, प्रिजन्स के नाम चेंज करके करेक्शंस कर देवा गया ना कि पीपल गेट करेक्टेड, या नॉट पनिशमेंट नहीं, उसके पॉजिटिव देखो ना कि पीपल गेट करेक्टेड। और फिर उसके बाद में रियली में उसके बाद में तो फिर
येलो रिबन प्रोजेक्ट ना, कि कैसे पीपल लोगन के एक सेकंड चांस मांगो तो कृष्ण इज डूइंग सब प्रिंसिपल डिराइव फ्रॉम भागवत में. तो कृष्ण इज ऑलवेज गिविंग द सेकंड चांस, अपराधी के सेकंड चांस दे. प्लस the good point is even up to all the demigods, even up to Lord Brahma, it is all within the material creation. So they are just good boys. They are just good children. So good children class prefect बना दिया गया लोगों ने. कभी कभी ऐसे भी रहे ना, जो सबसे नोटी रहे वही क्लास प्रीफेक्ट बना दो ना, तो बिहेव करे सीख जाए. Okay, so the next point Prabhupada says, therefore the chief engineer of the material creation is the Lord himself, as confirmed in Bhagavad Gita 9:10. तो जो चीफ इंजीनियर है वो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है. तो मैं देखा कि प्रभुपाद भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, 9:10 में क्या कहते हैं भगवान. Jana Prabhu is talking Bhagavad Gita. Yeah, 9:10 is Maya adhyakshena prakirte suyate sa characharam hetunane akonteya jagat viparivartate. This material nature, which is one of my energies, भगवान के मल्टीफारियस एनर्जी, भगवान के अनेक एनर्जी ना. कभी हम लोग बात करते हैं ना, अरे तो हमारा एक खली, तो मतलब बहुत छोटा बात है हमारे वास्ते. तो कृष्ण बोले दिस इज वन ऑफ माई एनर्जीज, is working under my direction. O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. कृष्ण तो फिर से बोले कि ये चक्कर है, again and again ही होते. भगवान बोले हमारा शक्ति है, हमारा डायरेक्शन से होवे है, फिर भगवान बोले कि ये सब प्रोड्यूस करें. तभी से जिसके पारंपरिक नॉलेज नहीं रहे, अगर स्पिरिचुअल साइंस डिसिप्लिन सक्सेशन में नहीं सीखो तो हम लोग सकता खाली वहीं स्पीक कर लेना. बिकॉज देखो कृष्ण क्लेरिफाई करे कि ये मटेरियल नेचर फिर अपने से काम करे ना. जब भगवान बोले हमारा शक्ति है, हमारा डायरेक्शन में काम करे है, फिर उससे आगे जैसे हम लोग बोलेगा ठीक है काव्या इज वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन, बट देन काव्या जाए सब दूसरा सब चीज करे है, देन शी कैन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग थिंग्स, बट देन शी इज डिराइविंग द अथॉरिटी. तो कॉमन आदमी सोचे कि हम बताए तबे ऐसे करें, तबे कभी कभी डेमीगॉड्स लोग भी अपन आपके भगवान माने लगे. थोड़ा वर्शिप मिले, थोड़ा रिस्पेक्ट मिले, थोड़ा तो नशा में हो जाए ना, सोमरस के नशा में हो जाए. इंद्र के तो रिपीटेड इंसिडेंट्स है. इंद्र दम ऑल द टाइम जल्दी से इंटॉक्सिकेट हो जाए, कभी पावा से, कभी वुमेन से, कभी वेल्थ से, सब चीज से जल्दी से हो जाए. तो भगवान बोले कि मटेरियल नेचर सब प्रोड्यूस करे, मूविंग एंड नॉन मूविंग, और अंडर इट्स रूल, भगवान रूल बना के दे दी से, अंडर इट्स रूल मैनिफेस्टेशन इज क्रिएटेड एंड एनालाइटेड अगेन एंड अगेन. तो अगेन हम लोगों के एक ज्ञान मिल जाए कि मटेरियल नेचर पे डिपेंड करेगा, तो मटेरियल नेचर अगेन एंड अगेन बात है, वो इटर्नल नहीं है. It is clearly stated here that the Supreme Lord, although aloof from all the activities of material world, remains the Supreme Director. ना कल प्रभु बोला रहा कि भगवान की इच्छा बिना एक पत्ती भी नहीं लेना, तो भगवान सुप्रीम डायरेक्टर है. फिर भी The Supreme Lord is the supreme will and the background of this material manifestation, but the management is being conducted by material nature. तो हम लोग जैसे आदमी कॉमन आदमी बोले आदमी पाप भी करी, तो बोले हम भी पाप करता है, भगवान की इच्छा से करता है, बिकॉज भगवान की इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं है. तो यहाँ पे कितना सुंदर प्रभुपाद बोली से, द सुप्रीम लॉर्ड इज द सुप्रीम विल. व्हाट इज कृष्ण सुप्रीम विल? फॉर द डिसोबीडियंट सोल इज कृष्णज विल कि मटेरियल वर्ल्ड है. नहीं तो अपने से मटेरियल हम लोग डिसोबे करके भी हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में नहीं जा पाएगा. ये तो कृष्ण हम लोग इनके डिजायर फुलफिल करें. Another powerful, impactful point Maharaj make करी सा, is just stuck in my mind कि महाराज बोले कि कृष्ण बोले है कि जहां जिसके जोन जोन वर्शिप करे कि जिसके जिसके फेथ है, भगवान बोले कि हम वहीं पे उसके फेथ स्ट्रेंथन कर देता है. तो महाराज एक्सप्लेन करता रहा कि
हम लोग के अलग फैद भी है, वो भी हम लोग अपने से नहीं कर पाएगा जबले भगवान उसमें अपन सपोर्ट नहीं डाली। डिजायर हमारे, लेकिन हम लोग अपन डिजायर्स भी नहीं कुछ कर पाएगा अनलेस भगवान के मदद इसमें नहीं रही। हम लोग सिंफुल भी डिजायर करेगा तो भगवान हम लोगन के मटेरियल क्रिएशन दी से ना, तब तो हम लोग पाप कर पाएगा। हाँ? तबे से जितना इजी है भगवत गीता में बोले जन्म कर्म छमे दिव्यम एवं वेदी तत्वता, तत्व से समझ पाना उतना, तो वैसे टेक्स, तबे से हरदम नेक्ट ऑफ डिवोशन के फर्स्ट प्रिंसिपल है कि प्योर डिवोशनल सर्विस। प्योर डिवोशनल सर्विस मतलब ये तत्व समझ जाएगा तो कितना ये तो प्रभुपाद की कृपा है। और हम लोग के इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग वैष्णव एसोसिएशन है प्रभुपाद के संस्था में, इतना एलिवेटेड डिवोटीज लोगन है, और ओकेजनली या टाइम एंड अगेन ये सब एसोसिएशन हम लोग के मिलते रहे तो हम लोग के समझ में आए। नहीं तो हम लोग भी सब बोले सब चीज भगवान की इच्छा बिना पत्ता भी नहीं ले, बस जो चीज चले सब भगवान की इच्छा ही है, बस जस्ट कीप गोइंग, देयर इज नो होप ऑफ रिफॉर्मेशन। आदमी बोले हम भगवान की इच्छा से ही करता है, हम सिंफुल एक्टिविटी भगवान की इच्छा से करता है। तो कितना सुंदर भगवान के विल से, भगवान के सपोर्ट से, अगर भगवान महातत्व नहीं दे तो मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट नहीं हो ना। भगवान हम लोग की बॉडी दे नहीं तो हम लोग सोल कौन सी कर पाएगा, हम लोग सब तो प्रेत आत्मा बन के मोक्षत प्रदुत भव हम लोग बोलेगा लेकिन मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो on the background of this material manifestation, but the management is being conducted by material nature. Krishna also states in Bhagavad Gita that all the living entities in different forms and species, of all the living entities in different forms and species, I am the Father. The Father gives the seed to the womb of the mother for the child, and similarly, the Supreme Lord by his mere glance injects all living entities into the womb of material नेचर। तो जब प्रलय हो ना, सब चीज भगवान के अंदर चल रहे, तो सब लिविंग एंटिटी जब भगवान के ब्रीथ इन में जब सब अंदर चल रहे, तो ब्रीथ आउट में जब फिर से सब निकले हैं तो भगवान ग्लांस से सब मटेरियल नेचर के बोले इम्प्रेग्नेट कर दे। Injects all the living entities into the womb of the material nature, and they come out in their different forms and species according to their last desires and activities. वो फॉर्म और शेप में हम लोग निकलेगा जो हम लोग के लास्ट डिजायर है। All these living entities, although born under the glance of the Supreme Lord, take their different bodies according to their past deeds and desires. भगवान के ग्लांस से ही होए है, लेकिन अपन पास्ट डीड्स और डिजायर्स से। सो द लॉर्ड इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू मटेरियल क्रिएशन, ही सिंपली ग्लांसेस ओवर मटेरियल नेचर। मटेरियल नेचर इज दस एक्टिवेटेड एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड इमीडिएटली। एक पॉइंट हमारे माइंड में भी आई गया कि जैसे कभी कभी हम लोग सोचता ना, भगवान है फिर भी ये सब चीज होए है, का ऐसे होए, का टेम्पल में इसे होए, का स्पिरिचुअल लाइफ में इसे होए। तो भगवान है, भगवान ग्लास करे, लेकिन डिजायर हम लोग हम लोग के डिजायर नहीं है सिर्फ करेंगे तो यू कांट कंप्लेन। हम लोग के डिजायर नहीं है चैंट करेंगे तो हम लोग बोले भगवान कहाँ इसे करे। हम लोग के डिजायर नहीं है प्रीच करेंगे, हम लोग के डिजायर नहीं है हम लोग जाएगा, हम लोग बोलेगा वो टेम्पल में जाता है, कोई बात नहीं करे है, कोई हमें देखे नहीं, तुम्हारा डिजायर नहीं है कोई से बात करेंगे। कृष्ण के कौन सी फॉल्ट है? कृष्ण तो अपन कृपा दृष्टि करे, नीचे हम लोग काम है एक्टिवेट हो इन डिवोशनल सर्विस। या तो हम लोग एक्टिवेट हो जाएगा मटेरियल एक्टिविटीज में, तो फिर भगवान देखे। क्योंकि हम लोग भी सोचता ना, बोलता है भगवान हम लोग के फेस्ट में ही रॉन्ग चीज नहीं करे देता तो प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन भगवान ग्लांस करे है, लेकिन डिजायर हम लोग के काम में करो। तो वैसे प्रभुपाद जी बोले कि हम लोग काम में डिजायर करो। और कलयुग में तो एडवांटेज है, कलयुग के एक वरदान है, कलयुग के एक बून है कि एटलीस्ट गुड थिंग्स डिजायर भी करो, यू गेट द ब्लेसिंग्स। प्रीच नहीं भी कर पाओ लेकिन डिजायर करो, सवेरे सवेरे एटलीस्ट मेडिटेट करो कि आज हम एक बुक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। नहीं भी कर पाया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बेनिफिट मिल जाए।
लेकिन हम लोग सोचता ही नहीं है कोर्स बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे हुई। कुछ नहीं तो रात के सुतेला टाइम सोचो कि ध्यान मंगल आरती जाएगा, भगवान बेनिफिट देते। लेकिन ऐसे सोचते 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 भगवान, आई एम श्योर आई नो कितना जन यहाँ आए हैं, ऑटोमेटिक है ना, हम अलार्म लगाता है फिर भी ऐसे आंखें खुल जाए, आंखें खुल जाए। दैट मीन्स कृष्ण इज, दिस इज, मेरा समझ है कि दिस इज ऑल्सो अगेन कृष्णा की एक झलक ना। ऐसे कभी कभी हम लोग कीर्तन में खड़ा रहता है तो कीर्तन इतना जम जाए, सब रोमांच हो जाए, लेकिन फिर थोड़ा देरी में ऑफ हो जाए ना, थोड़ा देरी हम लोग एकदम जोश में आ जाता है। तो वही रकम जब हम लोग के लाइफ में हम लोग कुछ गुड करेगा, when our service becomes, Krishna has started accepting our service, right? तो ई वाला क्लॉक जो है वो कृष्णा अपने से चलाए लेंगे अपने। हम लोग ढेर जन एक्सपीरियंस करता कि हम लोग जब सर्विस रहे या फेस्टिवल रहे, हम अलार्म लगाता कि हम कहीं मिस नहीं कर दे, लेकिन हम अपने से जग जाता। दैट मीन्स कृष्णा इज स्टार्टेड कंट्रोलिंग आवर लाइफ। कृष्णा हम लोग के जीवन के डोर अपन हाथ में ले लगाए। अभी हम लोग अपन जीवन के हाथ डोर जो है किसके हाथ में दिया है? माया के दिया है, माइंड के दिया है। तो हम लोग माइंड जैसे मांगे हम लोग कैसे दौड़ाए। तो वी शुड ऑल प्रे लाइक दिस, वी शुड ऑल एस्पायर लाइक दिस, कृष्णा प्लीज टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। हम लोग अर्जुन के रकम बोले पड़ी, भगवान करिष्ये वचनम तवा। तो हम लोग अभी भगवान के पहले बोले पड़ी कि पहले हमारा हाथ, जीवन के डोर अपन हाथ में लो, भगवान आप हमें गाइड करो, आप हमें गाइड करो। हमें याद करता हम लोग एर्ली डेज में कृष्णा कॉन्शियस में ऐसे रहा, जब हम लोग एकादशी भी करी, फास्टिंग भी करी, फेस्टिवल भी करी, तो हम लोग के डिवोटीज लोग बताता रहा कि लाइक फेस्टिवल डेज या फास्टिंग डेज यू कम फॉर मंगल आरती ना। शुभाल प्रभु में बोले कि वी शुड एनकरेज ऑल द डिवोटीज टू कम टू मंगल आरती एटलीस्ट ऑन एकादशीज ना, एटलीस्ट वंस अ वीक, संडेज के या तो कुछ नहीं एकादशीज के आओ या फेस्टिवल्स के आओ। व्हाई यू नीड टू कम? मेन चीज है कि आए के कृष्णा से बोलो कि प्लीज कृष्णा गिव मी द सपोर्ट, गिव मी द एनर्जी, गिव मी द ब्लेसिंग, आई कैन फास्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। महाराज फेस्ट डे यहाँ पे ऐसा क्लास दिया महाराज जैसा कि लॉर्ड ऋषभदेव के बारे में महाराज मेंशन अबाउट तपस्या ना। अभी तो हम लोग काफी एकादशी के भी हम लोग हाफ डे भी नहीं फास्टिंग हुए। आई थिंक अर्ली डेज हम लोग पूरा फुल डे श्री गुरुदेव के टाइम इट वाज लाइक एवरी एकादशी वाज लाइक निर्जल, सबको निर्जल कोशिश करे। और मैं सोचता हूं कि यू कैन सी सो मेनी डिवोटीज आर वेरी स्टेडी इन देयर कृष्ण, और नॉट दैट बाय पोजिशन बट लीडरशिप इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। लीडरशिप में बोलता हूं कृष्ण कॉन्शियसनेस का, तो मैं नहीं बोलता कि आप टेम्पल प्रेसिडेंट है कि ट्रेजरर है कि क्या, ये लीडर्स की बात नहीं मैं करता हूं। स्पिरिचुअल लीडरशिप मतलब प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड देन ऑल्सो इंस्पायरिंग अदर्स, दिस इज स्पिरिचुअल लीडरशिप। जैसे गुरु स्पिरिचुअल लीडरशिप है ना, गुरु के कोई पोजीशन नहीं है कि ही साइंस आई एम द टेम्पल प्रेसिडेंट ऑफ दिस टेम्पल, ऐसे नहीं। तो जो स्पिरिचुअल लीडरशिप में जो स्टेडीनेस है एक्चुअली इट इज डिराइव फ्रॉम तपस्या। प्रभुपाद हिमसेल्फ कितना तपस्या करता रहा। तो तपस्या इज समथिंग दैट गिव्स पावर, एंड आई थिंक वी टॉक अबाउट इट लेस, वी एनकरेज दिस थिंग्स लेस। तभी अगर हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग पावर कहाँ चला गए, सो दैट्स वेयर द पावर इज गॉन, बिकॉज हम लोग लेस तपस्वी हो गया है। वी नीड टू, अच्छा ठीक है अभी हेल्थ इश्यूज है सबके, पीपल नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट द डे कृष्णा टेक मी थ्रू एज मच एज पॉसिबल निर्जल ना। आई वाज जस्ट थिंकिंग वेरी नाइस एग्जांपल जन्माष्टमी के ना, सुमका प्रभु खाली एक वेव क्रिएट कर दिस 108 अभी कोशिश करा लेकिन नहीं बे बट एटलीस्ट एक बिगिनिंग हुआ, एक बिगिनिंग हुआ। यू स्टार्टेड अ डे सुमका प्रभु पोस्ट करी तो हम सोचा अच्छा, बट मतलब बोलेगा नहीं, पता नहीं होए कि नहीं लेट मी गो, देखिए कितना ले जाता है तो again these are things, inspirations, these are positive inspirations for everyone to ना। जैसे निर्जल एकादशी ऐसी राधा वल्लभ माता जी है, सखी है, प्रेमा रूपा माता जी है, और राधा डिवोटीज लोगों ने आर्यमणि माता जी है। तो हम देखता है लोगों सबको निर्जल के पॉजिटिव हुआ है, दे डू अ कंपटीशन निर्जल करे की कोशिश करे पूरा, और फिर
दिन भर लोग बात करते कितना माला हुआ, कितना माला हुआ, कितना माला हुआ। 64 करे जाते, जैसे सुमुखा तो बहुत हाई स्टैंडर्ड रेस कर देते, 64 सबको करते हैं, सुमुखा 108 करा दिया सबके। बट इट्स मोटिवेशन ना, वी ऑल नीड टू गेट देयर, वी ऑल नीड टू गेट देयर। So this is loving competition amongst devotees, and this motivates one another for what? Spiritual progress. जितना तपो दिव्यम पुत्र का ट्रांसेंडेंटल तपस्या है ये हम लोगन के। एक्चुअली में अगर पूरा भागवतम स्टडी करो या हम लोगन के सनातन धर्म स्टडी करो, ग्रेटनेस किसके हरदम जावे? ऑफ कोर्स डिवोटीज के, बट सेम टाइम डिवोटीज के मेन सपोर्ट क्या है? ध्रुव महाराज कौन सी करेगा? तपस्या। प्रहलाद महाराज कौन सी करीस? तपस्या। कुंती महारानी इतना ग्रेट लेडी डिवोटी बताया गया है, उसके लाइफ वाज फुल ऑफ तपस्या। प्रभुपाद के कृष्ण कॉन्शियसनेस स्प्रेड करे, हिज लाइफ वाज फुल ऑफ तपस्या। ही वेंट इन वृंदावन, स्टेड इन वन रूम, देन ही वेंट टू अमेरिका, then he was staying with the hippies, standing in line to use the same bathroom. हम लोग तो अभी राइट है, मगर डिवोटी लोग हैं महाराज बगल हो जा, बगल हो जा। Prabhupada didn't have people, he was not amongst people like that. He just another man stand in the line. तो तपस्या बहुत भारी प्रोग्रेस क्रिएट करे है। तो यहाँ बताया कि तो भगवान के बोले कि भगवान glances of material nature, but he has nothing to do with the manifestation. This example is given in the Smriti, where there is a fragrant flower before someone. The fragrance is touched by the smelling power of the person, yet the smelling and the flower are detached from one another. Very nice example, ना? एक फ्लावर में महक है, तो महक जो है वो हम लोग के नासिका हम लोग पिक करता ना, लेकिन फ्लावर और स्मेल जो है वो हम लोग से अलग है। तो भगवान इसे ग्लांस से क्रिएशन करे, लेकिन फिर उससे अलग भी है। वेरी क्या ब्रिलियंट एग्जाम्पल प्रभुपाद चूज करे। There is a similar connection between the material world and the Supreme Personality of Godhead. Actually, he has nothing to do with this material world, but he creates by his glance and ordains. In summary, material nature without the superintendence of the Supreme Personality of Godhead cannot do anything, yet the Supreme Personality is detached from all material activities. मैं एक रियलाइजेशन आपके साथ में शेयर करता हूँ। मैंने देखा है, when you are meditating on some service, then actually you get deeper into that service. मेरा खुद का एग्जाम्पल है, everyone likes, I like to talk. मुझे बात करना अच्छा लगता है, तो I like giving classes ना। तो बट मैं अपने रियलाइज करा हूँ, सुमुखा प्रभु मुझे हरदम फीडबैक देते हैं। तो कभी कभी I speak, people find it very boring. कभी कभी I speak, people feel it very interesting. तो मैं देखा हूं ये जो बोरिंग फीलिंग और इंटरेस्टिंग फीलिंग है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक्चुअली जब मैं क्लास से पहले उसके बारे में बहुत सोचता हूं कि क्या क्या सब्जेक्ट मैटर इसमें, क्या है। एक्चुअली मैं खुद रियलाइज करता हूं कि आई फाइंड न्यू एंड डीपर मीनिंग्स इन दिस थिंग्स। और जब मैं टू बिजी एंड जस्ट ऑन द रन, क्या बोलते हैं, हिट द ग्राउंड रनिंग, वो रकम करो, देन यू विल बी गोइंग डिफरेंट डायरेक्शंस, मिक्स अप, कंफ्यूजन, ये सब हो जाता है। समझने वाला ट्रैक फॉलो नहीं कर पाता है। तो ये रियलाइजेशन, मैं ये जब भगवद गीता का ये प्रपट पढ़ रहा था, मुझे जब मैं ये सब पढ़ लिया हूँ, लेकिन ये सब पॉइंट्स मुझे न्यू क्यों लग रहा है? इट्स लाइक न्यू। So this is the new, it's nothing new, it's deeper. Then you actually begin to see, oh, Prabhupada wrote like this. It's like, आज मैं ये पेपर पढ़ रहा हूँ, तो ये फ्लावर फ्रेगनेंस और ये इतना अच्छा से illustrative example how Bhagavan does everything and is detached from it. I don't think anyone heard me speak about this example in any of the other classes earlier, because I myself did not grasp it well. Na? So once you grasp it, so my point was main point is, any service you do, you have to meditate upon it. I experience festival days जैसे रहे, you look at the deities there, they look so attractive.
वाई? बिकॉज वो हफ्ता भर से पुजारी लोग सब सोचे भगवान के वेनी बनाएगा, भगवान के गार्लन फूल कहाँ खोजेगा, ई डेकोरेशन बनाएगा, फीट के बनाएगा, बाजूबंद बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा. तो दे आर एब्जॉर्ब्ड. सेम थिंग विथ कुकिंग. जैसे चाहे टेम्पल या कोई डिवोटी घरे भी प्रोग्राम हो, जो डिवोटी घरे प्रोग्राम है, अगर वो डिवोटी दम एब्जॉर्ब्ड है, माय वैष्णवस डिवोटीज विल कम, आई वांट टू मेक एवरीथिंग नाइस, यू नो, मेक द डिवोटीज हैप्पी. एक्चुअली देयर यू विल टेस्ट द प्रसादम वेरी नाइस ना. और कभी कभी हम लोग जाता है, कोई के घर में प्रोग्राम करा दिया है, कोई घर जबरदस्ती हम लोग प्रोग्राम करा देता, तो जाएगा यार प्रसाद वो जमा नहीं. एक्चुअली हम लोग उसमें एब्जॉर्ब नहीं हुए, जो होस्ट है एब्जॉर्ब नहीं हुए. तो इट्स ऑल अबाउट, प्रभुपाद जी हरदम बोले, प्रभुपाद जी टर्मिनोलॉजी यूज करें ना, एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. वी बिकम एब्जॉर्ब. जैसे एक स्पंज पानी सोख ले तो, बट लेकिन जैसे वो स्पंज प्रेस करेगा तो वो पानी निकली, बट इसे बाहर से देख के नहीं जान पाएगा कि वो पानी एब्जॉर्ब कर ली. तो वही रकम प्योर डिवोटीज है, उन लोगों के बाहर से देख के कभी नहीं सको जान पाए, लेकिन जैसे उन लोगों के प्रेस करेगा, देन दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टार्ट फ्लोइंग. प्रभुपाद के प्रेस करो, प्रभुपाद विल स्टार्ट टॉक से कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड ना. तो वैसे डिवोटीज के एसोसिएशन में जब हम लोग रहेगा, देन वी नो विच डिवोटी इज हाउ डीप ना. लेकिन अगर कोई डिवोटी कमती है भी एब्जॉर्ब करी से पानी, तो घबरा काम नहीं है, वो जब धीरे धीरे एब्जॉर्ब करे, द मोर डीपर ही गोज द मोर ही कैन एब्जॉर्ब. तो वंडरफुल. वी मस्ट ऑलवेज मेडिटेट. बुक डिस्ट्रीब्यूटर अपन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मेडिटेट करे. मेडिटेट नहीं करेगा, नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा. तो यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू टेक आउट टाइम. जैसे हम कभी कभी सोचता लाइक यू नो वी डू संडे फीस्ट, तो संडे फीस्ट करेगा हम लोग. जो कुकिंग ग्रुप है वो लोग 2-3 रोज से मेडिटेट करे हुए हैं. अच्छा सैटरडे चलो हम लोग क्लीन अप कर दो, रेडी कर दो ना, बिकॉज वी डोंट वांट टू प्रिपेयर थिंग्स और डू द सर्विस अंडर स्ट्रेस. वी वांट टू डू द सर्विस विथ लव, बिकॉज अदरवाइज स्ट्रेस फूड में चला जाए, सब स्ट्रेस फूड में चला जाए, सबको स्ट्रेसफुल हो जाए, डॉक्टर्स लोगों के बिजनेस बढ़ जाए. बट इफ यू डू लव, तो द होल थिंग इज हम अगर 24/7 भगवान में लगे रहे के, तो मेडिटेट करे से हम लोग संगे संगे यू नो डिवोटीज. तो आगे से प्रभुपाद जी में लास्ट पैराग्राफ प्रभुपाद जी बोले, there are 2 modes of material creation, the creation of the collective universes as stated above, done by Mahavishnu, and the creation of single universe. Both are done by the Lord, and thus the universal shape as we can see takes place. तो प्रभुपाद जी बोले क्रिएशन 2 है, एक भगवान कलेक्टिव करे, भगवान ब्रीद आउट करे, सब निकल जाए. फिर एक एक इंडिविजुअली हो, एक एक जगह एक एक लोक में ब्रह्मा जाए है, तो फिर ब्रह्मा वहाँ के लिविंग एंटिटीज जैसे जैसे है, वहाँ ग्रुप ऑफ लिविंग एंटिटीज. भगवान जब महाविष्णु ग्लांस करे है, तो सब यूनिवर्सेस ऐसे है ना, तो हाया प्लैनेट्स है, लवा प्लैनेट्स है. तो महाविष्णु नोज कि कौन हाया डिजायर से लास्ट क्रिएशन में आई से, कौन लवा डिजायर से. जब भगवान ग्लांस करे तो हाया लोक में चला जाए, नीचे से इसे रेज ना, इसे लाइट बीम. तो भगवान ये रकम ग्लांस करे, तो तबे से हाया प्लेनस, लवा प्लेनस, या 4 हेड 4 चतुर्मुखी ब्रह्मा, 1000 मुखी ब्रह्मा, ऐसे सब. तो प्रभुपाद जी बोले कि भगवान इसे एक क्रिएशन कर दे, कलेक्टिव हो जाए, फिर एक एक ब्रह्मा लोग अपना. सो वंस अगेन, thus when all these became assembled by the force of the energy of the supreme law personality of Godhead, this universe certainly came into being by accepting both primary and secondary causes of creation. So primary and secondary. Primary cause is, Prabhupada ji कितना सुंदर से last line of the puppet में connect कर दी. Primary is collective, भगवान से. Secondary is ब्रह्मा जी individual. ठीक है, तो स्टॉप किया ना प्रभु लोग कमेंट किया तो मेरा प्रभु सुखा प्रभु भगवान से प्रे करे कि हमारा डिजायर भगवान करे, इससे कल्पेट करेगा जो डिजायर है भगवान से, भगवान हमारा डिजायर तुम्हारे पास. वैसे प्रैक्टिकल कैसे प्रे करेंगे कि ना. एक्चुअली में प्रेयर्स से हुई, प्रेयर्स फर्स्ट स्टेप है. तो हम लोग जब प्रेयर्स करते रहेगा, तो हम लोग के माइंड के थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए.
सब चीज़ के प्रोसेस है ना, जैसे तुम मानो पूरी बनाता है उसके एक प्रोसेस है, फुलिया बनाता है उसके एक प्रोसेस है। तो स्टार्टिंग में ही डिटरमिन करे पड़ी कि हम फुलिया बनाएगा कि पूरी बनाएगा। फुलिया बनाएगा तो उसमें इस छोड़ के रखे पड़ी फूले के वास्ते, पूरी है तुम बनाएगा सेम टाइम तल लेगा। तो हम लोगन के जो कॉन्शियसनेस है एक्चुअली में प्रेया से, प्रेया वाला स्टेज पे, तब से सबसे फर्स्ट थिंग क्या है? सबसे फर्स्ट थिंग है कि हम लोगन चांट करता है। चांटिंग कौन सी है? प्रेया है। भगवान प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। तो चांटिंग इटसेल्फ इज अ प्रेया। बट बिकॉज हम लोग के माइंड और वेरीगेटेड है तो हम लोग चैंट करता है, बट हम लोग रियली में अगर देखेगा वो तो भगवान के नाम के प्रभाव है कि हम लोग चेंज होता है। बट आई डोंट नो, सम ऑफ यू मे बी, बट हम तो सोचता मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अनकॉन्शियस चैंट करता है। हम लोग कोई जने चैंटिंग करता हरे कृष्णा, हम लोग तनको नहीं माइंड में हम लोग के थ्रू है कि भगवान हम आपके सेवा मानता, भगवान हम आपके सेवा मानता, भगवान एने जी राधा रानी हमें सेवा भगवान के करना। बट तो प्रेया तो यही है ना। तो प्रेया इज द फर्स्ट स्टेप, बट दर्शन, बट प्रेया इज द फर्स्ट थिंग। तो प्रेया जब करते करते तो हम लोग के थॉट प्रोसेस चेंज होने लगी। तो फिर थॉट प्रोसेस जब हम लोग के प्रेया हर्ड हुई, हम लोग के थॉट प्रोसेस चेंज हुई, तो हम लोग सेवा में एंगेज होने लगेगा। लेकिन प्रभुपाद जी हम लोग के संगे संगे डिवोटी लोगों की कृपा भी दीस है कि कभी कभी हम लोग प्रेया भी नहीं करा है, माइंड चेंज भी नहीं है, बट कभी कभी हम लोग दी अदर वे ऑल्सो सको एंगेज हो जाए ना। एक आदमी आवे टेम्पल, हम लोग उसका प्रभु थोड़ा प्रसाद बंटवा दो। ही इज नॉट डिजायर टू डू दैट, ही इज नॉट प्रेड टू डू दैट, बट उसके अपसाइड डाउन, डाउन साइड अप कोई रकम से भी सको, द आइडिया इज टू कनेक्ट टू कृष्णा। बट अगर प्रॉपर वे में ले जा मनता है तो आप देखिएगा सब लोग ध्यान करे जाए, सब लोग प्रेया करे जाए, योगी लोग सब ध्यान में लगे, सब डिवोटीज के सब बिगिनिंग में सबको प्रे करे। अर्जुन प्रेज टू कृष्णा, कुंती माता प्रेज टू कृष्णा, राधा रानी प्रेज टू कृष्णा। सो प्रेयर्स आर वेरी पावरफुल। हम लोग थोड़ा प्रेया के, हमें लगे अर्ली डेज में हम लोग के प्रेया में बहुत फेथ रहा, एंड एज द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग पीपल के फेथ प्रेया में से हटे लगे। वेरी नाइस वीडियो क्लिप है शिवराम महाराज के ना अबाउट फेथ, तो देखना फेसबुक पे है। टेक टू मच, आई होप दैट हेल्प सम क्लियर। हाँ, है सेवी से हो हाँ, सब सर्विस, एवरीथिंग इज सर्विस, चांटिंग इज सर्विस। जैसे अभी बोलेगा हम लोग चांटिंग सर्विस में यू आर अहेड ऑफ अस, तुम 108 राउंड्स करता है, हम लोग 16 करता है, समझ गया। तो चांटिंग इज वन सेवा। what is the purpose of Krishna consciousness? What is Krishna consciousness? 24/7। और कहा है सब रकम सेविस है, बिकॉज हम लोग के माइंड, हम लोग के डिजायर एक्सपेक्ट करे वैरायटी, हम लोग मोनोटोनस नहीं लाइक करता है। तभी हम लोग थोड़ा भागवतम क्लास सुनता है, फिर कभी कीर्तन में हम लोग फन करता है, कभी प्रसाद में। लेकिन रूपा गोस्वामी तो को बताया स्टार्टिंग इज 7 मुखे ही जुआ दो प्रसादम एंड चांटिंग, बट देन इट एक्सपेंड्स इनटू एवरीथिंग एल्स। एवरीथिंग इज सर्विस, बट फिर किसके अलग अलग इंटरेस्ट डेवलप है। ठीक है, तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री गणिता।
आदिपुरुषम् गोविन्दा आदिपुरुषम् Okay.